अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप होपफुली आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे अपने घरों में। आज बेटे हम अपना T6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और कॉम्प्रीहेंशन और सेंटेंस कंप्लीशन है। ऑलरेडी दोनों टॉपिक्स जो है वो आप कर चुके हैं। सो कॉम्प्रीहेंशन हम विदाउट एनी डिले उसको जो है हम स्टार्ट करते हैं बेटे। और हमें पता है कि हमने अपना स्टार्ट करना है पहले क्वेश्चन आंसर से, तो उसी से स्टार्ट करते हैं जी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज़ टू रिकाउंट द हिस्ट्री, बल्कि साथ साथ हम क्वेश्चन जो है उसको आइडेंटिफाई करते जाएंगे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज़ टू रिकाउंट द हिस्ट्री ऑफ इडियोटोरॉड ट्रेल and the race that memorializes it. Then describe the obstacles involved in founding the Iditarod race. Then outline circumstances that led to the establishment of Iditarod trail. Then re-establish the important place of Iditarod trail in Alaska's history. Then based on information in the past, पहला क्वेश्चन आपको देख लें कि वो क्या है, पर्पस ऑफ द एसे क्या है। Based on information in the passage, it can be inferred that all of the following contributed to the disuse of Iditarod trail except, अब ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखें, बार बार कहता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में बहुत केयरफुल रहना है। मोर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिप्लेटेड गोल्ड माइंस, डिप्लेटेड कहते हैं रन आउट हो जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। हाईवे रूट्स टू घोस्ट टाउन्स or reduced demand for land travel, as used in line 11, which is the best definition for mode, ठीक है। line 11 में उसने mode एक word use किया है, formula, way, preference और option. Then number 4, according to the passage, the initial Iditarod race was funded through the sale of musher entrance fees, was founded by an advocate for Alaskan history, ended at the ghost town of Iditarod, then boasted a total of 400 entrants. Number 5 पर आप आएँ, as used in line 15, the phrase self-made historian implies that Dorothy G. Page was employed by the state to keep its dog sled history alive, was determined to honor the glories of the gold rush in spite of her questionable credentials कहते हैं उसकी history, had pursued the study of Alaska's history out of her own interest, had personally educated others about Alaska's history. Based on information in the passage, it can be inferred that because the US Army reopened the Iditarod Trail in 1972, more people could compete in the Iditarod race. The mushers had to get permission from the US Army to hold the race. The trail was cleared all the way to Nome. The Iditarod race became a seasonal army competition. अब हम आते हैं जी इसके पैसेज पर। In the early 1920s, settlers came to Alaska looking for gold. They traveled by the boat to coastal towns of Seward and Neck, and from there by land into the gold fields. The trail they used to travel inland is known today as the Iditarod Trail, one of the national historic trails designated by the Congress of the United States. The Iditarod Trail quickly became a major thoroughfare in Alaska. Thoroughfare कहते हैं route, passage. As the mail and the supplies were carried across this trail, people also used it to get from place to place, including the priests, ministers and judges who had to travel between villages. In the winter, the settlers' only means of travel down this trail was via dog sled. ठीक है, dog sled वो एक जैसे हमारे यहाँ खोता रेडी होती है, तो वो कुत्ते के आगे जो है, कुत्ता आगे उसके जोत देते हैं और पीछे जिस तरह आप वो नहीं करते स्केटिंग करते हो, तो स्केटिंग टाइप एक पीछे चीज़ होती है और उस पर जो है वो खड़े होकर ट्रैवल करते हैं और आगे आगे वो कुत्ता भागता जाता है और वो पीछे पीछे जो है उसके ऑब्वियसली वो मूव करते हैं, उसको डॉग स्लेड कहते हैं। Once the gold rush ended, many gold seekers went back to where they had come from, and suddenly there was a much less travel on the Iditarod Trail. The introduction of the airplane
in the late 1920s meant dog teams were no longer the standard mode of transportation, and of course, with the airplane carrying the mail and supplies, there were less need for land travel in general. The final blow to the use of the dog teams was the appearance of snowmobile. By the mid 1960s, most Alaskans didn't even know the Iditarod Trail existed or that dog teams had played a crucial role in Alaska's early settlements. Dorothy G. Page, a self-made historian, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया, इससे पहले आप पूरा देख रहे हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन से रेलेवेंट जो है वो कोई चीज़ नहीं आई. Dorothy G. Page, a self-made historian, recognized how few people knew about the former use of sled dogs as working animals and about the Iditarod Trail's role in Alaska's colorful history. To raise awareness about this aspect of Alaskan history, she came up with an idea to have a dog sled race over the Iditarod Trail. She presented her idea to an enthusiastic musher as dog sled drivers are known. अब मशर्स का भी उसने बता दिया कि वो क्या होते हैं, जैसे टांगे का जो ड्राइवर है उसको कोचवान कहते हैं, तो उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको मशर्स कहते हैं. नेम्ड जो रेडिंगटन सीनियर, सून द पेजेस एंड द रेडिंगटन्स. अब ये पेजेस एंड रेडिंगटन्स क्या हैं, उनके फॉलोअर्स को बेसिकली कहा जा रहा है. ठीक है, वर वर्किंग टुगेदर टू प्रमोट द आइडिया ऑफ Iditarod race. Many people worked to make the first Iditarod Trail sled dog race a reality in 1967. The Aurora Dog Mushers Club, along with men from the adult camp in Sutton, helped clear years of overgrowth from the first 9 miles of the Iditarod Trail. To raise interest in the race, a $25,000 purse was offered. Purse का मतलब यहाँ पर क्या है, reward. With Joe Redington donating 1 acre of his land to help raise the funds. The short race, approximately 27 miles long, was put on a second time in 1969. After these first two successful races, the goal was to lengthen the race a little further to the ghost town of Iditarod by 1973. अब यहाँ से इसको शायद Iditarod Trail अब आगे देखेंगे. However, in 1972, the US Army reopened the trail as a winter exercise, and so in 1973, the decision was made to take the race all the way to the city of Nome, over 1,000 miles. There were many who believed it could not be done and that it was crazy to send a bunch of mushers out into the vast uninhabited Alaskan wilderness. But the race went. 22 mushers finished that year, and to date over 400 people have completed it. ठीक है जी, सो इस पर हम अब बात करते हैं questions. The primary purpose of this passage is to, A option is the correct option, recount the history of the Iditarod Trail and the race. Obviously यही इसका जो है वो memorizes it, उसको उसके memorial है basically ये race. Describe the obstacles involved in founding the Iditarod race. उसका जिक्र किया, लेकिन ये पर्पज़ नहीं था. पर्पज़ ये था कि वो हिस्ट्री उसकी बयान की जा सके. Outline the circumstances that led to the establishment of Iditarod Trail. Circumstances उसने ऊपर बयान किए, लेकिन उसकी मेन पर्पज़ ये नहीं है. Re-establish the important place of the Iditarod Trail in Alaska's history. ठीक है, important place सॉरी, तो दोबारा से अलास्कन हिस्ट्री में उसको जगह बनाने के लिए भी ये डोरोथी जी पेज का आइडिया था, बट ये मेन पर्पस नहीं है. मेन पर्पस क्या है, ओवरऑल सारी की सारी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है. नेक्स्ट देखिए जी, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑल ऑफ द अबव फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द डिसयूज ऑफ द Iditarod ट्रेल. ठीक है, सब के सब ने अपना अपना रोल प्ले किया सिवाय एक चीज़ के, और वो एक चीज़ क्या है वो आप देख लें. मोर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो उसने जिक्र किया है कि चूँकि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए तो लोगों ने स्लेड डॉग जो है उसको बिल्कुल छोड़ दिया. डिप्लेटेड गोल्ड माइंस, इसका भी उसने तस्करा किया है कि गोल्ड माइंस की वजह ही से तो इसको जो है वो लोगों ने छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था, ऑब्सोलीट हो गई थी. हाईवे रूट्स टू घोस्ट टाउन, ठीक है, हाईवे रूट्स तो वहाँ डेवलप ही नहीं हुए, इसका कोई तस्करा मौजूद नहीं है. ठीक है, तो लिहाजा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. As used in line 11, which is the best definition for mode. ठीक है, वे, अगर आप दोबारा भी इसको देखना चाहें तो वह कहते हैं the introduction of the airplane in the late 1920s meant dog teams were no longer the standard mode of transportation, standard way of transportation. ठीक है,
तो यहाँ आप उसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन और प्रेफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नंबर 4 पर जाएं जी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इनिशियल इडिटारॉयड रेस was founded by an advocate for Alaskan history। Obviously डोरोथी जी पेज जो है उसने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि हमें जो है अलास्का की हिस्ट्री को एलाबरेट करने के लिए जो है इस तरह की कोई रेस जो है उसका इनेकाद करना चाहिए। एज यूज इन लाइन 15 द फ्रेज सेल्फ मेड हिस्टोरियन, अभी हमने पीछे उसका तस्करा भी किया, इम्प्लाइज इसका मतलब क्या है दैट डोरोथी जी पेज हैड परसूड द हिस्ट्री ऑफ अलास्का आउट ऑफ हर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसको कोई फॉर्मली वो हिस्टोरियन नहीं थी, खुद ब खुद ही उसने एक चीज़ एक्सप्लोर की कि अलास्का की ये हिस्ट्री है, उससे उसको एक एफिलिएशन डेवलप हुई और उस एफिलिएशन के नतीजे में जो है अल्टीमेटली शी वाज एबल टू कंडक्ट दैट रेस। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट बिकॉज द यूएस आर्मी रीओपन द इडिटारॉयड ट्रेल इन 1972 मोर पीपल कुड कम्पीट। इसका तो कोई जिक्र नहीं मिलता। द मशर्स हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम द यूएस आर्मी, इसका भी कोई तस्करा नहीं है। द ट्रेल वॉज क्लियर्ड ऑल द वे टू नो। यस, इसी वजह से चूँकि वो पूरे का पूरा उन्होंने विंटर एक्सरसाइज के लिए जो है उस पूरे एरिया को जो है वो कैप्चर कर लिया था, इसलिए नोम तक जो है सारे के सारे रूट्स जो है उनको क्लियर कर दिया गया था। सो दैट वाज इट, ये हमारा आज का पैसेज था जी। अब हम चल रहे हैं बेटे आगे, देखिएगा। सेंटेंस कंप्लीशन की जानिब जो है वो हम जा रहे हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करके देता जाऊं। His one voice was gluttony, and so it is not surprising that as he aged, he became increasingly corpulent। ठीक है जी। अब ग्लटनी क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा खाने पीने वाला जो है उसको कहते हैं। तो अब जो बहुत ज़्यादा खाता पीता हो वो क्या है? इसमें अब जो कीवर्ड है वो हमारा क्या है? ग्लटनी। अब जो ग्लटनी है वो फीबल नहीं हो सकता, कमज़ोर तो नहीं होगा, वो तो बड़ा हट्टा कट्टा होगा। ठीक है, क्रिटिकल भी नहीं हो सकता, क्रिटिकल का खाने से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, और स्मार्ट भी बिल्कुल नहीं हो सकता। सो कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट बेसिकली कहते हैं मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा, उसको जो है वो हम कहते हैं। Our once thriving high school club is now blank. The programs have had to be cancelled due to lack of support. Thriving कहते हैं पॉपुलर, बहुत फेमस। ठीक है, अब उसने दो इसमें की वर्ड्स हैं। once thriving कि कभी जो क्लब बहुत पॉपुलर था, इट मीन्स कि अब क्या है, उसकी कैफियत क्या होगी? नाउ के बाद हमने क्या यूज करने, चलिए इधर लिख देता हूं। नाउ के बाद हमने क्या यूज करने, नाउ के बाद इसका ऑपोजिट वर्ड यूज करना है। तो थ्राइविंग का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डिफंक्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग तो इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। रिवाइविंग, रिवाइविंग तो थ्राइविंग का ऑलमोस्ट सिनोनिम हो जाता है, और फ्लरिशिंग भी क्या है, वो भी थ्राइविंग का सिनोनिम है। तो हमने क्या यूज करना है? डिफंक्ट। अब डिफंक्ट का आपको मतलब नहीं पता, ठीक है, डिफंक्ट का आपको मतलब नहीं पता। अब ये फंक्ट क्या है? फंक्शनल से आप इसको याद रख सकते हैं। फंक्शनल या फंक्शन क्या होता है? जो काम कर रहा हो। और डी हमें पता है कि डी क्या है हमारा? दैट इज अ नेगेटिव रूट वर्ड। जहां भी लगता है उसको क्या करता है? नेगेटिव उलट बना देता है। जैसे हम कहते हैं एबिलिटी, डिबिलिटी। ठीक है, तो ये जिसके साथ भी लगेगा, कोड, डी कोड, ठीक है, जिसके साथ भी लगेगा उसको क्या करेगा? नेगेटिव। तो फंक्शनल, डिसफंक्शनल या डिफंक्ट के वो जो बड़ा ही पॉपुलर क्लब होता था, अब क्या है? अब वहां पर जो है वो कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है वो नहीं हो सकती। देन
और यही वजह है कि वो आगे उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि मोस्ट द प्रोग्राम्स हैव हैड टू बी कैंसल्ड, ठीक है, कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स क्या हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। नंबर 9 पे देखें जी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ इन रिसेंट ईयर्स बिकम इंक्रीजिंगली ब्लैंक, इट इज़ ऑलमोस्ट impossible for the non-literary person to understand its analysis, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने देखने एक तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को उसने क्या कहा कि वो कुछ ऐसा हो गया है, तबीयत मतलब उसकी नेचर इस तरह की हो गई है कि अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट। कुछ ऐसा हो गया है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो आपने कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है नीचे कि जिससे ये साबित हो, ये रिप्लेसमेंट ऑफ अ फ्रेज है जो हमने सेंटेंस कंपटीशन में किया था। आपने कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जिससे ये पता चल सके कि जिसका मतलब ये बनता हो कि उसको समझना मुश्किल है। तो एक्सेसिबल क्या होता है, बी ऑप्शन पहले हम डिस्कस करें। एक्सेसिबल दैट इज़ वेरी इजीली अप्रोचेबल। क्लोकियल कहते हैं ओल्ड, ठीक है, जैसे हम कहते हैं क्लोकियल इंग्लिश, ठीक है, तो ओल्ड, तो ओल्ड होने का समझने से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल होगा तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो सबको समझ आएगा। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हुई, गलत होगी। तो आपके ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, दैट इज एब्स्ट्रूज, ऑप्शन ए। यहाँ पर मैं आपको इसके ऑप्शंस भी लिखता जाता हूँ सो दैट के। नेक्स्ट देखिए जी, अ ब्लैंक चाइल्ड, शी वाज सून बोर्ड इन द क्लास, शी ऑलरेडी न्यू मोर मैथमेटिक्स देन हर जूनियर स्कूल टीचर। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं आपके। एक तो वो बोरियत फील कर रही है, बट बोरियत भी दो तीन वजह से हो सकती है ना। एक तो ये कि वो उसको आता ही कुछ नहीं है तब भी बोर हो जाएगा, उसका ध्यान कहीं और है तब भी बोर हो जाएगा। लेकिन उसने और मजीद उसके एक्सप्लेन कर दी। ये कीवर्ड्स हम इसके देख रहे हैं, न्यू मोर मैथ्स, तो उसको पहले ही बहुत आता था। ऐसा बच्चा क्या होगा, ठीक है, वो हमने देखना है कि वो ऐसे वाला बोर बच्चा नहीं जिसको नहीं कुछ आता, वो ऐसा बोर बच्चा जिसको ज़्यादा ही कुछ आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अडल्ट चाइल्ड, देखें ये करेंगे। अब इसको समझते जाएं कि कैसे हमने ना रूल आउट ऑप्शन कैसे करनी होती है। अगर हम अडल्ट चाइल्ड करें तो ये कहाँ जाएगा, न्यू मोर मैथमेटिक्स। अडल्ट चाइल्ड को तो मैथमेटिक्स नहीं पता होगा। देन उसमें देखें अ प्लेफुल चाइल्ड, प्लेफुल चाइल्ड भी जो है उसको भी को बहुत ज़्यादा पढ़ाई से उसकी दिलचस्पी नहीं होती। देन ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट कहते हैं ज़िद्दी, ठीक है, तो ज़िद्दी भी जो है उसका भी जो है न्यू मोर मैथमेटिक्स से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्रिकॉशियस चाइल्ड जो है उसको कहते हैं, ठीक है, प्रिकॉशियस कहते हैं बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है उसको। नंबर 5 पे, बल्कि इसकी नंबरिंग इसके अकॉर्डिंगली मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उधर MCQ में गलती फील ना हो। 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, नंबर 11 पे देखें जी, कंसिडरिंग ही चीटेड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ऑफ द ईयर, रिसीविंग एन ऑटोमेटिक 0 सीम्स डैश पनिशमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जी, चीटेड इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स, और दूसरा उसको क्या कहते हैं जी, को पनिशमेंट मिली है, उस पनिशमेंट के बारे में सवाल किया गया है कि वो पनिशमेंट कैसी है, ठीक है। पनिशमेंट है ना, एडजेक्टिव हमने फाइंड आउट करने। कंसिडरिंग ही चीटेड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ द ईयर,
रिसीविंग एन ऑटोमेटिक जीरो सीम्स डैश पनिशमेंट, स्लाइट पनिशमेंट नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो स्लाइट पनिशमेंट तो नहीं होती। अनफेयर पनिशमेंट, अनफेयर भी नहीं है। क्यों अनफेयर नहीं है? बिकॉज ही हैज सीटेड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ऑफ द ईयर, तो अनफेयर भी नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, यूजलेस, यूजलेस तो नहीं है, जब जीरो आता है तो लाग पता जाता है बंदे को, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी जी? हमारे पास ऑप्शन बचेगी एन अप्रोप्रिएट पनिशमेंट, ठीक है जी। देन ट्राइना's पेरेंट्स आर कंसर्न्ड विद हाउ शी हैज़ बिकम, इसमें पहले वाले में मैं आपको सॉरी ऑप्शन मार्क कर दूं आपकी। ट्राइना's पेरेंट्स आर कंसर्न्ड विद हाउ शी हैज़ बिकम, कि उसकी हालत, कंडीशन के बारे में वो कंसर्न्ड है। क्या है जी? पेरेंट्स आर कंसर्न्ड, क्यों कंसर्न्ड है जी? दे आर ट्राइंग टू फाइंड मोर एक्टिविटीज टू ऑक्यूपाई हर टाइम। असल मकसद क्या है? ऑक्यूपाई हर, अब देखिएगा ऑप्शन इसके चेक करें। ट्राइना आर कंसर्न विद हाउ हेल्दी हैज़ बिकम, भी हेल्दी होगी तो कंसर्न तो नहीं होंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सर वो बहुत मोटी भी तो हो सकती है, ट्राइना तो हो सकता है कि उसकी माँ को उसके रिश्ते की फिक्र पड़ गई होगी, जी मेरी बेटी अगर मोटी हो जाएगी तो रिश्ता नहीं होगा, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। तो अगर वो मोटी हो रही होती ना तो वर्ड हेल्दी इस्तेमाल ना किया जाता, वर्ड क्या यूज़ किया जाता? ओबीस, ठीक है, फिर हम उसके लिए ये कंसिडर कर सकते थे। तो हेल्दी तो एक पॉजिटिव वर्ड है ना, हेल्दी का मतलब सेहतमंद हो रही है, हेल्दी का ये मतलब नहीं कि फूलती जा रही है, ठीक है। सी देखिए, विद हाउ एक्टिव शी हैज़ बिकम, अगर वो एक्टिव हो तो फिर ऑक्यूपाई हर टाइम, कोई मज़ीद एक्टिविटीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयड, ठीक है, हाउ एम्प्लॉयड ही इज़, एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि वो हर वक्त क्या है, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है, तो इसलिए एक्टिविटी ढूंढने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी ढूंढने की ज़रूरत कब होगी? जब हम बी ऑप्शन चूज़ करेंगे कि हाउ आइडल शी हैज़ बिकम, कि वो कितनी निकम्मी, कितनी निखट्टू हो गई है, और वो चाह रही हैं हर वक्त कि उसके लिए कोई नई से नई जो है एक्टिविटी जो है उसको तलाश करते रहे। देन आफ्टर जोस and Vedi get married, they are going to open a blank bank account so they can share the share expenses. अब इसमें देखें, इसमें असल चीज़ क्या है? शेयर एक्सपेंसेस, कि वो ऐसा कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें वो एक्सपेंसेस अपने क्या करें? एक्सपेंसेस शेयर कर सकें, ठीक है। तो शेयर करने का एक ही तरीका है उनके पास कि वो कौन सा अकाउंट खुलवाएं। आप देखें, इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाएंगे तो शेयर नहीं कर सकेंगे, सेपरेट अकाउंट खुलवाएंगे तो तब भी शेयर नहीं कर सकेंगे, इंडिपेंडेंट अकाउंट खुलवाएंगे तो तब भी शेयर नहीं कर सकेंगे। एक्सपेंसेस शेयर करने के लिए एक ही कंपल्शन है कि वो क्या करें? जॉइंट अकाउंट जो है उसको खुलवाएं। Then Cindy's husband proved to be a blank gentleman. He opened doors, paid for dinner and even drove her home. ठीक है। अब इसमें थ्रू आउट क्या है? उसका पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया कि भी बड़ा ही अच्छा बंदा था, ठीक है, घुमाने फिराने भी ले जाता था, दरवाजे भी खुद खोलता था, नखरे भी उठा रहा है, ठीक है, सारा कुछ कर रहा है, तो बहुत शानदार आदमी होगा ना, एक आइडियल हस्बैंड होगा तो वो इस तरह की हरकत करेगा, ठीक है। तो क्या हम करेंगे? अ क्वेश्चनेबल जेंटलमैन, क्वेश्चनेबल तो नहीं हो सकता कि जो इतनी अच्छा बंदा है उसके बारे में क्वेश्चन करना इंतहाई अहम काना बात है, इंतहाई ना शुक्रिया होगी सिंडी की, जो है ना, सिंडी हाथ धो बैठेगी ऐसे हस्बैंड से। नेक्स्ट है जी सी, देखें, हैप्पी जेंटलमैन, जेंटलमैन का हैप्पी से कोई ताल्लुक नहीं है,
कॉमिकल जेंटलमैन, कॉमिकल कहते हैं मजाहिया, ठीक है। तो जेंटलमैन जो है वो मजाहिया जेंटलमैन नहीं होते, जेंटलमैन क्या होते हैं, जेन्युइन जेंटलमैन होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है that will be considered the accurate option. Unlike the misleading television documentary, अब देखें दो चीज़ें आ गई, एक तो उसने कर दिया अनलाइक और दूसरा उसने कर दिया मिसलीडिंग। डॉक्यूमेंट्री क्या थी, मिसलीडिंग, और आपने अब क्या ढूंढना है, अनलाइक। इसका अनलाइक क्या था, कंट्रास्ट, इसके कोई उलट चीज़, मिसलीडिंग का एंटोनिम ढूंढना है। Unlike misleading television documentary, the biography was interesting. Interesting misleading का एंटोनिम नहीं है। Fantastic, fantastic भी misleading का opposite नहीं है। और false, false तो क्या है, वो उसका सिनोनिम बन जाएगा misleading का। So हमारे पास जो एंटोनिम है misleading का वो क्या है, that is accurate, that is option B। नंबर 16 पर आए जल्दी से बेटे, हमारे पास टाइम अब कम है थोड़ा सा। साइकोपैथ्स ब्लैंक इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अदर्स बिकॉज दे लैक मॉरल कंपस, ठीक है, मतलब उनके जो मॉरल सपोर्ट में जो लोग होने चाहिए वो नहीं होते, ठीक है। तो साइकोपैथ सिंपैथेटिकली इन्फ्लिक्ट हार्म्स, ठीक है। आप मजाक मजाक में हमदर्दी में किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि मुझे आपसे बहुत हमदर्दी इसीलिए मैं आपका मुंह तोड़ना चाह रहा, ठीक है, ये मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है इसीलिए मैं आपका कारोबार तबाह करना चाह रहा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। एलैबोरेट सॉरी डेस्परेटली इन्फ्लिक्ट हार्म, डेस्परेटली ज़रूरी नहीं है, साइकोपैथ्स जो हैं वो डेस्परेटली हर वक्त नहीं कर रहे होते। पोलाइटली कोई भी चीज़ जो है वो हार्मफुल नहीं हो सकती, ठीक है। So the only options we are left with, अब इसमें जो असल चीज़ है ना, जो आपकी इन्फ्लिक्ट हार्म, आपने क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है। अब पोलाइटली जेंटली जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, नुकसान जो है वो हमेशा कब पहुंचाया जाएगा, नुकसान पहुंचाया जाएगा हमेशा विशियसली, ठीक है, बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो नुकसान पहुंचाया जाएगा। देन ऑल्दो केट्स रिपोर्ट ऑन अ साइंटिफिक फाइंडिंग वाज लेंथी, द प्रेजेंटेशन ही हेल्ड वाज रादर। अब नंबर 17 पर आए जी, ये देखिएगा दो इसमें, एक तो ऑल्दो और दूसरा लेंथी, कि दो चीज़ें आ गई ना कि हमने अब क्या करना है, ऑल्दो क्या है, ऊपर हमने अभी किया कंट्रास्ट को शो करते हैं, तो अब हमने क्या करना है, लेंथी का कंट्रास्ट, लेंथी का जो एंटोनिम है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ऑल्दो केट्स रिपोर्ट ऑन हर साइंटिफिक फाइंडिंग्स वाज लेंथी, द प्रेजेंटेशन शी हेल्ड वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। हो सकता है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो लेंथी का एंटोनिम नहीं है, हमने लेंथी का उलट ढूंढना है। वाज रादर एलैबोरेट, एलैबोरेट तो लेंथी का सिनोनिम होता है, एलैबोरेट होता है बहुत वाज़े, बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बड़ी डिटेल्ड जो प्रेजेंटेशन होती है उसको कहते हैं। मंडेन, मंडेन कहते हैं कंफ्यूजिंग, तो कंफ्यूजिंग भी जो है वो नहीं है। तो हमारे पास द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज ब्रीफ, ठीक है, क्योंकि लेंथी का एंटोनिम, लेंथी का कंट्रास्ट क्या है, लेंथी का कंट्रास्ट है ब्रीफ। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी यहाँ पे दैट विल बी डी। इसके बाद नंबर 18 पे आए जी, देयर इज अ कॉमन बिलीफ इन द सोसाइटी दैट पीपल हु आर अनएजुकेटेड एंड इन पॉवर्टी यूज स्लैंग, हाउएवर दिस बिलीफ इज, देखें फिर हमारे पास वही बात आ जाएगी, इसमें दो चीज़ें हैं, एक उसने एक बिलीफ, कॉमन बिलीफ जो है वो शेयर किया है, लेकिन उसके साथ क्या किया है, हाउएवर लगा दिया। अब हाउएवर क्या है, कंट्रास्ट, कि जो कुछ उसने यहाँ वो क्या कह रहा है कि ये समझा जाता है कि ये बिलीफ ट्रू है,
बट हाउएवर, इसका नेचुरली क्या जुमला बनेगा कि हाउएवर, ताहम, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये बिलीफ बज़ाहिर वो कह रही है कि ठीक है, बट मैं हमेशा कहता हूँ आप बच्चों से कि जहाँ बट, हाउएवर, ऑल्दो, इस तरह की चीज़ें कंट्रास्टिंग कंजंक्शंस लग जाएं, वहाँ पे असल बात इनके बाद शुरू होती है, ठीक है। अगर वाले में भी, लेकिन वाले में भी असल बात बाद में। आपके से पैसे मांगते हैं, वो कहता है यार मैं तेरी मदद तो बहुत करना चाहता हूँ, ये असल बात नहीं है। असल बात क्या है, वो कहेगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये लेकिन के बाद वाली जो कहानी है ना, उस पर गौर करना होता है कि लेकिन के बाद उसने क्या कहा। लेकिन के बाद, जैसे आप कहते हैं अक्सर आपके इससे कुछ मतलब ज़िंदगी में 100 तरह की आपको जो है वो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप किसी से सपोर्ट चाहिए ना, मॉरल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की, तो बहुत बार ये होता है कि आप अगले के पास जाते हैं और कहते हैं यार तू भरा है मेरा, तू जिगर है अपना, लेकिन यार मैं कर नहीं सकता तेरे लिए, ठीक है। तो वो लेकिन के बाद वाला जो चीज़ है ना, उस पर आपने फोकस करना है। लेकिन से पहले वाले को लानत भेजें, उस पर कोई ज़रूरत नहीं है हमें उसको फोकस करने की। हमारी ब्लैंक का ताल्लुक जो है वो हाउएवर के बाद वाले फिक्रे पे, ठीक है जी। देयर इज़ अ कॉमन बिलीफ इन द सोसाइटी दैट people who are uneducated and in poverty use slang. However, this belief is popular. हमने क्या करना है, ट्रू का उलट ढूंढना है। इनफैक्चुअल कहते हैं कि फैक्ट बेस्ड नहीं है, तो ये भी ट्रू का ऑपोजिट नहीं है। ट्रू का ऑपोजिट क्या है, एरोनियस। एरोनियस क्या होता है, एरर से एरोनियस है। एरर क्या होता है, एरर होता है मिस्टेक। नंबर 1, बिकॉज ऑफ माई ब्लैंक। नंबर 19 पे इसकी, सॉरी मैं आपको लगा दूं ऑप्शन इसकी बनेगी सी। नंबर 19 पर आए जी। बिकॉज ऑफ माई ब्लैंक, फ्रांसिस इज नाउ यूजिंग द सेम फ्लोर क्लीनर दैट आई यूज। आप देखें, ये देखिएगा सेम फ्लोर क्लीनर यूज हो रहा है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ माई डिसअप्रूवल। आपने अगर उसको डिसअप्रूवल दे दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तो वो आप वाला फ्लोर क्लीनर जो है वो यूज़ नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस कि वो ये यकीन रखती हो कि आप इंतहाई अहमक आदमी हैं और आपका मशवरा किसी भी सूरत नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो डिसअप्रूवल पे तो वो आपके साथ बात नहीं करेगी, मतलब आप वाला फ्लोर क्लीनर जो है वो यूज़ नहीं करेगी। बिकॉज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, और आपके अंडरस्टैंडिंग की वजह से तो वो फ्लोर क्लीनर उस तरह का यूज़ नहीं करेगी। देन थ्योरी, बिकॉज ऑफ माई थ्योरी। फ्लोर क्लीनर की कोई थ्योरी नहीं होती, ठीक है, ये कोई साइंटिफिक आइडिया नहीं है कि जिसके मुतालिक आप थ्योरी डेवलप करें। तो आप क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ माई रिकमेंडेशन, ठीक है, कि मैंने उसे चूँकि रिकमेंड किया था, तो अब वो क्या कह रही है, वही फ्लोर क्लीनर यूज़ कर रही है जो कि मैं किया करता हूँ। नंबर 20 पे जाएँ जी। आई डू नॉट लाइक कार्बोनेटेड ब्लैंक, सो आई ऑफन ड्रिंक जूस और वाटर। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए ऑप्शंस लिख रहा हूँ, इसकी ऑप्शन बेटे बनती है सी। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर। अमीर रफली, आई डू नॉट लाइक कार्बोनेटेड थिंग्स। कार्बोनेटेड थिंग्स नहीं होती, थिंग्स कार्बोनेटेड नहीं होती, फूड्स भी कार्बोनेटेड नहीं होती, ठीक है। वो फास्ट फूड हो सकती है, ठीक है, आप क्या लें कि ऑयली फूड्स हो सकती हैं। कार्बोनेटेड कुकीज़ वो भी नहीं होती। कार्बोनेटेड क्या होती हैं, देर आर ओनली बेवरेजेस। सर बेवरेजेस जो हैं वो कार्बोनेटेड होती हैं। नंबर 21 पे हैं जी। रादर देन फोकस ऑन वन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, सम चैरिटीज ट्राई टू डू वर्क दैट बेनिफिट्स ब्लैंक ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब ये देखें 21 में क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप और साथ उसने क्या लगा दिया, रादर देन। अब रादर देन क्या है, ये भी कंट्रास्ट है, तो आपने ये स्पेसिफिक ग्रुप का कंट्रास्ट ढूंढना है
स्पेसिफिक ग्रुप का कंट्रास्ट क्या है? सम ऑफ द ह्यूमैनिटी नहीं, फ्यू ऑफ द ह्यूमैनिटी, फ्यू तो वही स्पेसिफिक आ जाते हैं, एनी भी एक सिंगुलर है, तो इसका क्या होगा जी? दैट बेनिफिट्स मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। स्पेसिफिक का उलट क्या होगा? मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। Harold enjoyed singing in boys choir so much that he wanted to do it। अब बड़ा ही सिंपल है इसका नंबर 22 पे कि एक चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू डू इट एवरी डे। आप हर रोज़ जो है, ओकेजनली तो इसे नहीं करना चाहेंगे, जिस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा है उसको आप कभी कभार नहीं करेंगे, रेयरली, ना होने के बराबर, कभी मुद्दतों बाद, और सेल्डम, कभी यही मतलब है, उसको सेल्डम और रेयरली या ओकेजनली नहीं करेंगे, उसको आप क्या करेंगे? यू विल डू इट एवरी डे। इसमें असल चीज़ क्या है? एंजॉय अ लॉट, कि वो बहुत ज़्यादा उससे लुत्फ़ उठाता है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा उसके लिए लुत्फ़ का बायस है, उसको जो है वो कभी ओकेजनली नहीं करेगा। द एक्सपेडिशन वॉज फ्रॉट विद ब्लैंक, इट रेन्ड एवरी डे, सम ब्रोक देयर एंकल एंड सिकनेस प्लेग द क्रू फ्रॉम डे वन। ठीक है, ये सारी किस चीज़ की अलामतें हैं? ये सारी किस चीज़ की अलामतें हैं? ये मिसफॉर्चून्स की अलामतें हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि जितने भी इवेंट्स उसने बयान किए हैं, इवेंट्स आर ऑल बैड, बुरे इवेंट्स उसने बयान किए। तो ये क्या है? फ्रॉट विद मिसफॉर्चून्स, कि वो किससे भरी हुई थी? ये पूरी की पूरी कैंपेन जो है, इसमें जगह जगह, कदम कदम पर क्या थी? मिसफॉर्चून्स थी। Visitors are given tours of historic blank daily. It is no longer used as a residence, though it boasts a grand total of 38 bedroom। अब ये देखें, दो चार चीज़ें इसमें कॉमन है। एक तो ये रेजिडेंस थी और इसमें बहुत ही ज़्यादा कमरे हैं, 38 रूम्स हैं। तो आपको पता है ऐसी रेजिडेंस जो बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा कमरे हों, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कहते उसको, डिस्ट्रिक्ट तो ज़िला होता है। वाटरवे भी नहीं कहते। वाटरवे क्या होता है? समुद्री गुजरगाह होती है। और विलेज, एक बिल्डिंग की विलेज नहीं होती। कमरे तो विलेज में 38 हो सकते हैं, लेकिन विलेज जो है एक बिल्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास, हमें मेंशन का मतलब नहीं भी पता, तो इसके बावजूद हम अपनी ऑप्शन जो है उसको करेक्ट मार्क करने में कामयाब हो जाएंगे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट सीरियस एंड ब्लैंक प्रॉब्लम इन पाकिस्तान टुडे। अब देखें, डब्ल्यूएस क्या होती है? डाउटफुल। तो प्रॉब्लम ये डाउटफुल तो नहीं, ये तो बड़ी एपरेंट प्रॉब्लम है। ओकेजनल नहीं, ओकेजनल नहीं है। जो बहुत मोस्ट सीरियस की बात क्या रहा है, ठीक है, देखिए ना, मैं आपको इसको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि सिंपल है थोड़ा सा, लेकिन दो तीन चीज़ें इसमें हैं। मोस्ट सीरियस, जब कोई प्रॉब्लम मोस्ट सीरियस है तो वो डब्ल्यूएस नहीं होगी, डब्ल्यूएस अनक्लियर को कहते हैं। ठीक है, वो तो बड़ी वाज़ेह होगी ना, शदीद, जैसे सपोज, फिर बार बार एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आज कोरोना। ठीक है, अब कोई कहे कि कोरोना डब्ल्यूएस प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही है, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है। ओकेजनल अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मोस्ट सीरियस नहीं होगी। अनपॉपुलर, जो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है वो लोगों के दरमियान पॉपुलर होगी, लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रैक्टेबल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इंट्रैक्टेबल कहते हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड। ठीक है जी, ये आज का हमारा जो है ये लास्ट एमसीक्यूज था, और पूरी मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने जो है इस डिस्कशन को बहुत एंजॉय भी किया होगा, एंड यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट। जीते रहें, खुश रहें, और घरों पे रहें, सेफ रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश बच्चे, थैंक यू, खुश रहें।